آئیے ایک لمحے کے لیے ہم ساری جماعت اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں. صرف ایک بات آپ نے میرے ساتھ مل کر کہنی ہے. یہ وہ بات ہے جو میں عموماً کہتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ خدا کا کلام سنیں تو یہ مت سوچیں کہ گھر پر پیچھے کیا ہو رہا ہے. خدا کے کلام میں زندگی پائی جاتی ہے، اور یہ زندگی 2-4 روزہ زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کلام میں ابدی زندگی پائی جاتی ہے. یہاں پر بہت ساری بہنیں اور بھائی شاید ایسے ہوں جو پریشان حال یہاں پر آئے ہیں، جو شاید اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. میں آپ کو سچ کہنا چاہتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کا حل اس دنیا کے پاس نہیں ہے. اگر اس دنیا کے پاس حل ہوتا تو آپ اپنی مشکلوں کا حل لے کر یہاں پر بیٹھے ہوتے. لیکن اگرچہ یہاں پر کوئی ایک چھوٹے سے مسئلے میں بھی ہے تو یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی کی امید صرف خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے. اور آنے والے 20 منٹ تک آپ کا دھیان کسی اور شے پر نہ ہو بلکہ صرف خدا کے زندہ کلام پر. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یہ وعدہ میرے ساتھ مل کر گائیے گا. یہ وعدہ آپ نے خدا کے حضور میں کہنا ہے کہ خداوند ہم تیرے کلام کو سنیں گے، ہم تیری آواز کو سنیں گے. جب تو مجھ سے بولے گا میں تیری سنوں گا اے خدا. جب تو مجھ سے بولے گا تو میں جانتا ہوں میرے حالات بدل جائیں گے، میرے واقعات بدل جائیں گے، میری زندگی بدل جائے گی، میرا معاشرہ بدلے گا، میرا گرد و نواح بدلے گا. آئیے مل کر کہیے گا. میں گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام. میں گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام. کہ اس تے اپنے بندیاں نال پاک لوکاں نال تمام. کہ اس تے اپنے بندیاں نال پاک لوکاں نال تمام. گل کرے گا جو اس دی بات ہے صلح سلامتی دی. کہیے گا بل کے گل کرے گا جو اس دی بات ہے صلح سلامتی دی. پر چاہیدہ ہے جو مڑیے نا اس گل تو آسی بھی. پر چاہیدہ ہے جو مڑیے نا اس گل تو آسی بھی. مل کے کہیے گا میں گل کمان جد کا کلام. ایک آواز ہو کر کہیے گا میں گل خود شافرانڈا لا کا رین دے 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 شوندرو رو رو بو جد کا ریکھلاندیا لانا نمو سین دے کے تے دے دے کہ اس تے اپنے بندیاں نال پاک لوکاں نال تمام. کہ اس تے اپنے بندیاں نال پاک لوکاں نال تمام. پاک لوکاں نال تمام. پاک لوکاں نال تمام. خداوند مہربان آسمانی باپ، آج شام ہمارے دل تیری پاک حضوری میں تیری شکر گزاری سے بھرے ہیں. اے باپ آسمانی تو فرما تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں تیری آواز سنتے ہیں. یسوع مسیح کے نام میں ساری جماعت مل کر کہے گی، مل کر کہیں گے
आइए जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए बजाएं। इको बिल्कुल बंद कर दें। जोरदार तालियां यीशु मसीह के जलाल के लिए बजाइएगा। हालेलुया। ये बड़ी खूबसूरत शाम है जब हम तमाम यहाँ पर खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से जमा हैं। ये हमारे लिए ये बड़ी खुशबख्ती है कि हम यीशु की इबादत करते हैं और बड़े वसूख से कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे दरमियान मौजूद है। दुनिया में कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता कि जिस माबूद की मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिस माबूद की मैं इबादत कर रहा हूं, वो मेरे दरमियान जुम्बश कर रहा है, वो हमारे दरमियान जुम्बश कर रहा है। आज शाम इस सालाना कन्वेंशन के अंदर मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना वक्त निकाला और आप यहां पर मौजूद हैं। जिन्होंने प्रस्तुत की और बिलखसूस ये छोटे बच्चे जिन्होंने हदिये के वक्त में प्रस्तुत की, मैं चाहता हूं इन सब के लिए जोरदार जरा तालियां बजाइएगा। They did such a wonderful job। मैं अपने नहायती मोहतरम भाई पास्टर एहसान अंसर साहब का, रेवरेंड सलामत चिराग साहब का और यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन इवेंजेलिकल चर्च का सारी इंतजामिया का जो यहाँ पर है, आप सब बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं और मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपने दरमियान मदऊ किया कि मैं खुदा का कलाम सुनाऊं। आइए पादरी एहसान साहब के लिए, रेवरेंड सलामत चिराग साहब के लिए और जितने बहन भाई यहाँ पर आपको खिदमत करते हुए नजर आ रहे हैं, इन तमाम के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। टू ऑनर देम, इन्हें इज्जत और एहतराम पेश करने के लिए जोरदार तालियां जरा बजाइएगा। प्रेज द लॉर्ड। और आइए अब खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। जिस दुनिया के अंदर आप और मैं रह रहे हैं, ये दुनिया तारीखे इंसानी के बड़े संजीदा और संगीन दिनों में से गुजर रही है। मेरी बात को सिर्फ 20 मिनट के लिए आपने सुनना है, लेकिन बड़े ध्यान से सुनिएगा कि ये कलाम आपकी जिंदगी को जिंदगी बख्श दे, ये आपकी रूहों को शाद कर दे, आपके अंदर से मायूसी को निकाल दे, परेशानी को निकाल दे, वहम को निकाल दे, तसब्जुब को निकाल दे। क्योंकि इस दुनिया में आज जो आपको मिलता है वो सिर्फ दुख है, परेशानी है, बदहाली है, बीमारियां हैं, ज़वाल है, तारीकी है, बदरवाह है और न जाने क्या क्या लोग अपनी जिंदगियों और घरों के अंदर लेकर बैठे हुए हैं। इस दुनिया के अंदर गोया यूं मालूम होता है कि जिंदगी जैसे हो ही ना। आप किसी को भी उठा लें, किसी से भी पूछ ले, भाई तेरा हाल कैसा है, तेरा घर कैसा है, वो आपको एक लंबी फहरिस्त दे देगा जो उसकी परेशानियों की होगी, उसके बुरे हालात की होगी, उसके बच्चों की नाफरमानी की होगी, उसके घर में मुंशियात की होगी, उसके घर में माली बहरान की होगी। दिल में तसल्ली नहीं है, दिल में शादमानी नहीं है, चेहरे मुस्कुराहट से खाली हैं, दिल के अंदर अफसुर्दगी ने घर किया हुआ है। आप किसी को भी उठा लें और उसका सबब यह है कि इस दुनिया के अंदर शादमानी है ही नहीं। इस दुनिया के अंदर आपको हर तरफ अफसुर्दगी मिलती है और आज कई दफा जब लोगों के ऊपर बीमारी आ जाए तो वो तलाश करते हैं कि किस डॉक्टर के पास जाएं। ऐसा ही है, डॉक्टर की तलाश करते ना भाई, कौन सा डॉक्टर सबसे बेहतरीन हो कि मैं अपनी फला बीमारी से शिफा पा जाऊं, कौन सा डॉक्टर मुझे मिल जाए कि मेरी बीमारी का बिस्तरा पलटा जाए और मैं सेहतयाब हो जाऊं। जब माली बहरान आए तो बैंक की तलाश की जाती है, केड़े बैंक चो मेनू मोटा लोन मिल जाएगा। नौकरी की तलाश की जाती है, कहां पर बेहतर नौकरी मिल जाए, बेहतर से बेहतर की तलाश हो रही है।
लेकिन किसके दरमियान? अफसुर्दगियों और मायूसियों के दौरान, उन हालात में जब आप पिस रहे हैं। आज कई सारे ईमानदार हैं, बहुत सारे मसीह हैं जो अपने हालात से तंग हैं, अपने वाकयात से तंग हैं। आज मैं एड्रेस कर रहा हूं, ये मेरी और आपकी जिस्मानी मुश्किलें हैं। हो सकता है आप यहां पर बैठे हो, आपको यूं मालूम हो रहा हो कि भाई मेरे बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं और मैं अपने बारे में भी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि आज हम तलाश कर रहे हैं कि इस जिंदगी को जिंदगी कहां से मिलेगी, इस जिंदगी को शिफा कहां से मिलेगी, इस जिंदगी को मौजज़ा कहां से मिलेगा। कोई हमें कहता है फलां को चले जाओ तो दम करा लो, ठीक हो जाओगे। फलां को चले जाओ, देखो लो तावीज ले लो, ठीक हो जाओगे। किसी जादूगर को चले जाओ, ओ फलां टोटका कर देगा। फलां हॉस्पिटल चले जाओ, फलां बैंक चले जाओ, मुश्किलों का हल मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, दुनिया का माल, दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत, दुनिया का कुछ भी आपके दिल को शादमानी नहीं दे सकता। आपको दुनिया की कोई चीज जिंदगी नहीं दे सकती। आपको दुनिया की कोई शय शादमानी नहीं दे सकती। पैसे जेब में होकर भी चेहरों पर मायूसी रहेगी। पैसे जेब में होकर भी चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। आपके हालात बदलेंगे या नहीं, इसका पता नहीं। बच्चे फर्मा बरदार माल और दौलत से नहीं बनते, घर में से बीमारी रुपयों से नहीं जाती, वरना आज दुनिया के करोड़पति लोग शुगर के पेशेंट ना होते। कभी भी ये दुनिया आपको दे नहीं सकती। मैं कह रहा हूं आज शाम अपने दिल में दुनिया को आपने मार के यहां से उठना है, दुनिया को मार के उठना है कि ये दुनिया मुझे वो नहीं दे सकती जो मैं चाहता हूं कि मुझे मिले। अरे इस दुनिया के पास है ही नहीं। यीशु कहने लगे, कहते हैं ये दुनिया तुम्हें इत्मीनान नहीं दे सकती क्योंकि इसके पास है ही नहीं। अगर होता तो ये तुम्हें पहले ही दे देती। इस दुनिया में इत्मीनान नहीं है। आज ये हवाला जो आपके लिए पढ़ा गया, जरा ध्यान करें। मसीह खुदावंद का सवाल पतरस से क्या है? उसने कहा कई मुझे छोड़कर चले गए हैं, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू लीव मी? और पतरस का सादा सा जवाब आज का पैगाम आपके लिए है। कहने क्या लगा? कहता है खुदावंद, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़कर कहां जाएंगे? Where will we go? हमारे अहबाब हमें बताते हैं कि फलां डॉक्टर बड़ा बेहतरीन है। हमारे दोस्त हमें बताते हैं कि फलां बैंक बड़ा अच्छा है, फलां जगह, फलां शहर, फलां मुल्क बड़ा अच्छा है, वहां चला जा, तेरी तकदीर, तेरी तदबीर, तेरा हालात, तेरे वाकयात, तेरे जज्बात बदल जाएंगे। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं, मुल्क बदल ले, शहर बदल ले, लिबास बदल ले, गाड़ी बदल ले, घर बदल ले, कोई चीज आपको जिंदगी नहीं दे सकती। कहने लगा खुदावन, हम तुझे छोड़कर जाए तो जाए कहां? हमें इस बात का मुकाशफा मिल गया है कि खुदा का कदूस तो है ही तू। हमें इस बात का मुकाशफा मिल गया है कि बरकतों का मरकज तू ही है। हमें इस बात का मुकाशफा मिल गया है कि जिंदगी में आगे बढ़ने की राह है ही तू। हमें इस बात का मुकाशफा मिल गया है कि खुदा का बेटा है ही तू। वो मसीहा तू है जिसकी दुनिया मुंतजिर है। वो हालात बदलने वाला तू है, वाकयात को बदलने वाला, मौजज़े दिखाने वाला तू है। हम तुझे छोड़कर कहां जाएं? हम किस डॉक्टर का दरवाजा बजाएं? हम किसका दर बजाएं जब हमें मालूम पड़ गया है, हम जान गए हैं। कहता है हम जान गए हैं। सिर्फ ये नहीं कह रहा कि हम तुझ पर ईमान ले आए हैं,
आज कई सारे कहते हैं हमारा ईमान यीशु पर है, हम यीशु पर ईमान रखते हैं, लेकिन हम यीशु को जानते जुनते कोई नहीं है। हम ईमान ले आए हैं क्यों? मेरा दादा भी ऐसी ईमान च सी, मेरा वालिद साहब भी ऐसी ईमान च सी, मैं भी ऐसी ईमान च। कई ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਫਲਾਣ ਚਰਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਪੀਣਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ। ਉਹਨੇ ਠੀਕ किया जे, उन्हें गलत नहीं किया। जिंदगी कहां मिलेगी? ये यीशु पर ईमान रखते हैं, सारे रखते हैं। बदरूहें आपसे ज्यादा यीशु पर ईमान रखती हैं, बदरवाह आपसे ज्यादा यीशु पर ईमान रखती हैं, शैतान आपसे ज्यादा यीशु मसीह पर ईमान रखता है। यीशु ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਭੱਜ जाएगा, यीशु को वो देख लेता है भाग जाता है। उसका भी ईमान है कि यीशु ही है जो मुर्दों को जिंदा करता है। ये बदरवाह भी जानती है आप ईमान रखते तो क्या तीर मारते हैं। हमारा तीर ये है, सुनिएगा बड़े ध्यान से, कि हम सिर्फ उस पर ईमान नहीं रखते बल्कि हम उसे जानते हैं, क्योंकि वो खुद कहता है कि अब मैं तुम्हें अपना दोस्त और अपना भाई कहकर पुकारता हूं। चलो भैनों, तुहानू भैन कह के पुकार रहा है। कहता है अब तुम परदेसी और मुसाफिर और अनजान मेरे लिए नहीं रहे, अब तुम मुझे जान जाओ। पतरस कह रहा है हम तुझे जान गए हैं। We have come to know you, कि तू खुदा का कदूस है। किसी को जानने का मतलब यह होता है कि आप उसकी जात और उसकी सिफात से वाकिफ हो गए हैं। आपको मालूम पड़ गया कि यह है कौन, आपको मालूम पड़ गया कि यह करता क्या क्या है, आपको मालूम पड़ गया कि यह आया कहां है और इसके पीछे चलने वाले जाते कहां को है। यह जिंदगी की तलाश आप सारों को है। यहां पर बैठे हुए कितने लोग हैं जो ये आज दिलेरी से कहें मुझे पैसे नहीं चाहिए? कोई है किनू पैसे नहीं चाहिए? वो अपना हाथ देगा, एक बार जिन नहीं चाहिए, मैनू तो चाहिए नहीं, तो सारे नालों ज्यादा। अरे कौन ऐसा यहां पर बैठा जो ये कहे खुदा मुझे तुझसे औलाद नहीं चाहिए? है कोई ऐसा यहां पर बैठा हुआ जो ये कहे खुदावन मुझे बरकत नहीं चाहिए? कोई यहां पर ऐसा बैठा हुआ जो कहे कि मुझे स्कूल की फीस बच्चों की नहीं चाहिए? कोई एक यहां पर बैठा हुआ ये कह दे कि खुदावन मैं खुश रहना नहीं चाहता? एक हाथ उठा दो, एक हाथ दिखा दे मुझे, दुनिया भर में एक हाथ दिखा दे जो ये कहे कि मैं खुश रहना नहीं चाहता, मैं शादमान होना नहीं चाहता। लेकिन फिर मेरी बात याद रख लें कि इस दुनिया में खुशी आपको कहीं नहीं मिलने वाली। आप टीवी ऑन करें, आपको पता चलेगा इतने मर गए, इतने बम फट गए, इतने लुट गए, इतने बर्बाद हो गए हैं। आप किसी के साथ मोहल्ले में बैठ जाएं, वो आपको बताएगा इतनी डकैतियां, इतनी चोरियां, मेरी बीवी इंदी, मेरा बंदा इंदा, मेरे बच्चे इंजदे। हर कोई अपनी बुरी खबरां तो दस, पूरे दिन बुरा सुनना, बुरा करना, बुरा बोलना, बुरा सूंघना और बुरा चखना है हमारा। कहां से शादमानी पाओगे? कहता है खुदावन तुझे छोड़कर कहां जाए, तुझे छोड़कर हम कहां जाएं? जकई को मसीह की जात का मुकाशफा मिला है। एक गल्ला खाली गिरजे जान नाल नहीं मिल दिया। ओ जकई को मसीह की जात का मुकाशफा, उसका दीदार, उसका इनकाउंटर ऐसा मिला है। जब मसीह उसके घर में दाखिल हुआ, कहता है खुदावंद मैं जान गया हूं मेरी जिंदगी कैसी खोखली और नाकिस थी,
अब मैं कुछ ठीक करता हूं, जितनों का नाहक पैसा लिया है उन्हें 4 गुना लौटाता हूं और अपना बाकी सारा माल मैं गरीबों में बांट दूंगा। अगर पैसे से शादमानी आती तो ये अपना सब कुछ ना बांटता, अपना सब कुछ, सब बोलेंगे भाई अपना सब कुछ ना बांटता। लेकिन इसे मालूम पड़ गया, मुकाशफा मिल गया पतरस की तरह जो ये कह रहा है तुझे छोड़ के कहां जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, जिंदगी की रोटी तू है, जिंदगी का पानी तू है, बरकतों का मरकज तू है, तुझे छोड़ के कहां जाए। ए छोड़ के किते ना जाने वाली जड़ी गल है ना, ਇਹਦਾ मतलब है थोड़ा जा भी इधर उधर नहीं होना। कितना जा भाई अपना हाथ इंज करो, कितना सा उत्ते करो, मैनू विखाओ ਤੁਹਾਡਾ थोड़ा किसी का बहुता है तो किसी का थोड़ा, जरा विखाओ थोड़ा कितना है ਤੁਹਾਡਾ। ओ भाई थोड़ा सा भी इधर का उधर नहीं होना। कहता है हम तुझे छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि खुदावंद जिंदगी की रोटी हमारे लिए कौन है? कौन है भाई? कईयां नूं शक लगता मैनू है, जिंदगी की रोटी कौन, जिंदगी का पानी कौन? लोग उसे छोड़ के हम कहां को जाएं? जिंदगी की रोटी वो है, जिंदगी का पानी वो है, हमारी बरकतों का मरकज वो है, हमारे पास उसके अलावा कोई और चारा नहीं। अगर आज शाम कोई अपनी जिंदगी में हकीकी बरकत को देखना चाहता है, कौन सी बरकत? सचमुच की, वक्ती नहीं, आरजी नहीं, हवा की चुरान की तरह नहीं कि आज कुछ हुआ और बरकतें उड़ गई। ऐसी बरकतों की बात नहीं कर रहा मैं। बाइबल कहती है कि जो बरकतें, चले बरकतों का नाम लेता हूं जो उस आयत में लिखा है जो दौलत खुदा बख्शता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता। जो दौलत, जो बरकत खुदा आपको देगा वो उसमें दुख शामिल नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास पैसा बहुत सारा हो लेकिन आप मीठा ना खा सके क्योंकि आप शुगर के मरीज हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास पैसा बहुत सारा है लेकिन आप सुबह उठ के हलवा पूड़ी नहीं खा सकते क्योंकि आपको दिल के अमराज हैं। आप बरकतों का लुत्फ उठाएंगे क्योंकि जिंदगी का पानी आपके अंदर होगा। आमीन। एक बात कहकर मैं इख्तिताम करने लगा और उसके बाद हम दुआ करेंगे, क्योंकि आज बात आपकी बरकत की मैं कर रहा हूं। जब आप रोटी खाते हैं या जब आप पानी पीते हैं, उस रोटी खाने और पानी पीने के अंदर एक बहुत खास सिफ्त यह है कि वो दोनों चीजें आपके बदन का हिस्सा बन जाती हैं। वो दोनों चीजें, खाई हुई रोटी और पिया हुआ पानी, आपके बदन का हिस्सा बन जाती हैं। और यसू, मैं हैरान हूं कि अपने आप को रोटी और पानी से तशबीह देके कहते हैं कि मैं तेरे लिए सारे ना ले लेके कह रहा है, मैं तेरे लिए जिंदगी की रोटी और तेरे लिए मैं जिंदगी का पानी हूं। क्या ये रहा है कि मैं तेरी जिंदगी में तेरे साथ एक हो गया हूं। मैं तेरी जिंदगी में तेरे साथ मुलब्बस होना चाहता हूं। तू जहां पर है, जिस मकान में तू है ना, कई दफा सी कहने खुदावंद खाली गिरजे च मिलता, कार च नहीं मिलेगा। खुदावंद शायद डिफेंस वाले बंगले च मिलेगा, लालाबाद दी किसी छोटे क्वार्टर च नहीं मिलेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जहां आप हैं उसी जगह पर वो आपके साथ एक होना चाहता है। आमीन। आप जिन मुश्किल हालात में हैं वो उन हालातों में आपके साथ एक होना चाहता है। आप जिस भी तरह की हालत में हैं, आप बीमार हैं, वो उस बीमारी में आपके साथ एक होना चाहता है। खुशखबरी ये है कि इस रोटी को खाने वाला और इस पानी को पीने वाला, बाइबल कहती है, वो कभी ना मरेगा। वो कभी ना मरेगा, क्योंकि जिंदगी बख्शने वाला,
जिंदगी देने वाला, हालात को बदलने वाला आपके बदन में, किसमें? आपके। और एक गल नूं हुण बड़े ध्यान नाल सुनियो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपकी जान में या आपकी रूह में, क्योंकि आप सारे यहां पर बदनी हालत में हैं और यहां पर कोई डेड बॉडी नहीं पड़ी हुई। सो मैं जिंदों से बात कर रहा हूं जिनके अंदर सांसें हैं, और मैं आपको यह बता रहा हूं कि वो आपके बदन के साथ एक होना चाहता है। आपकी बदनी कैफियत और आपकी बदनी हालत में आपके साथ एक होना चाहता। आपका बदन अगर आज शाम बीमार है तो आपने इस रोटी को खाना और इस पानी को पीना है, आप में जिंदगी आ जाएगी। अगरचे आपके हालात खराब है, इस रोटी और पानी को आज आपने खाना और पीना है ताकि आप में जिंदगी आ जाए, आप में कुव्वत आ जाए, बीमारी बाहर निकल जाए। और आज हमने सिर्फ यीशु पर ईमान ही नहीं रखना, ईमान लाने का मतलब यह है कि हम निजात पा चुके हैं। हम क्या पा चुके हैं? निजात पा चुके हैं। निजात पा लेना आपकी मसीही जिंदगी का आखिर नहीं है। आपकी मसीही जिंदगी का आखिर निजात पा लेने के बाद जब वो रोटी खाते और उस पानी को यानी कि यीशु को अपने अंदर ले लेते हैं, तो निजात में तरक्की करना ये दूसरा अमल है। निजात में क्या करना? एक थोड़िया जी पैड़ा दी आवाज आती है, निजात में बेटा, निजात में तरक्की करना ये दूसरा बड़ा अमल है। कई सारे लोग अपनी निजात नू तकिए थले रख के डेली रात नू उहदे ते सिर रख के सौंदे ने, लेकिन उसमें तरक्की नहीं कर रहे। जहां पर निजात पाई थी आज भी 10 साल बाद वहीं पर खड़े हुए हैं, 20 साल बाद वहीं पर खड़े हुए हैं। जदों पुछ लो उन्होंने, उन्हों का फखर अज भी आई है कि मैं 20 साल पहला निजात पाई सी। भाई साहब मिलते हो लोगों को, भाई 20 साल पहले निजात पाई थी, 30 साल पहले निजात पाई। आज उन्हों की हालत ऊंजी है जिवें 20 साल पहला सी। हालत आज भी हुई है जिहड़ी 30 साल पहला सी। उसका सबब यह है निजात पाई, निजात में तरक्की नहीं की, निजात में तरक्की नहीं की। आज शाम जिंदगी देने वाले यीशु को सिर्फ निजात दहिंदा के तौर पर नहीं, बल्कि आपकी मदद करने वाले के तौर पर, जो आपकी निजात में आपको तरक्की करने में आपकी मदद करे, उस तौर पर भी अपने अंदर लेकर जाइएगा। तरक्की करें इस निजात में। खुदा के बड़े मंसूबे आपके लिए हैं। अगर अब तक आप अपने उन मंसूबों की फहरिस्त में तरक्की नहीं कर रहे, तो याबीस की तरह आज शाम यहां से दुआ करके उठिएगा। याबीस की दुआ सुने, क्या है? कहता है, खुदावन तू मुझे वाकई बरकत दे। कौन सी बरकत दे? हाय थोड़ा नहीं पानी आज। कौन सी बरकत दे? वाकई बरकत दे। वाकई बरकत। वो कह सकता था मुझे बरकत दे, कह रहा है तू मुझे वाकई बरकत दे, मेरी हदूद को बढ़ा। कह रहा है सचमुच की बरकत। मेरी इंटरप्रिटेशन, मेरी तशरीह के बारे च है। वो कहना ये चाह रहा है खुदा को, खुदावन मुझे ऐसी बरकत दे कि जदों लोकी मैनू वेखन, ओ वेख के कहन कि इहदे उत्ते खुदा दा हाथ है। जदों लोकी मैनू वेखन, ओ कहन, एविडेंट हो, विजिबल हो, लोग देखे कि इस पर खुदा का हाथ है। कोरोना लोकी मर रहे ने और है वधी जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं माली बुरहान है और इसकी बरकतों में कमी नहीं आ रही। लोग कह रहे हैं दुनिया के हालात खराब है, लेकिन ये कौन है जो शादमान लालाबाद की गलियों में घूम रहा है? ये कौन है जब लोग कह रहे हैं ज़वाल आ गया, तारीखी आ गई, और ये जो है हमद के गीत सर बुलंद करता है? हु इज ही? ये कौन है? कहां से इसके अंदर शादमानी है? या भी इस कहता है खुदावन तू मुझे वाकई बरकत दे, मुझे वाकई बरकत दे।